کل جو میسج آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں پاک روح کی وساطت سے، پاک روح کی مرضی سے، اور وہ ہے میاں بیوی کی محبت کے بارے میں، میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں، میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں. یہ جو میسیجز ہیں وہ تقریباً یہ پورا مہینہ جو ہے وہ آپ کو سنائے جائیں گے. اور جتنے میاں بیوی جوڑے بیٹھے ہیں صرف انہی کے لیے نہیں، فیوچر میں جنہوں نے بننا ہے ان کے لیے بھی یہ کلام جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ وہ بھی سیکھیں اور خدا ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اور شروع میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ میرا ٹارگٹ کسی ہسبینڈ کو ہرٹ نہیں کرنا، نہ کسی بیوی کو. دونوں کو ہم سنیں گے، دونوں سے سیکھیں گے، دونوں کی خامیاں جو ہیں وہ نیگلیکٹ کرتے جائیں گے، دور کرتے چلے جائیں گے اور خوبیوں کو اپناتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور آج ہم سیکھیں گے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں 11واں باب 11 سے 12 آیت. بائبل ضرور کھولیں پلیز. پہلا کرنتھیوں 11 باب 11 سے 12 آیت سامنے آ چکی ہے، مل کے پڑھیں گے. تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے اور نہ مرد عورت کے بغیر ہے، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں. آمین. یہ پالوس رسول نے پاک روح کے ہدایت میں یہ جو پہلا کرنتھیوں 11واں باب 11ویں آیت سے لے کے 12 تک میں نے پڑھا ہے، یہ لکھوایا گیا. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا، پالوس رسول کہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. یعنی مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے. اس لیے ایک دوسرے کو مل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ میں تو سارا دن کام داون جا رہا ہوں. پھر بھی اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ٹائم نکالیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. کسی کو اپنے اندر مس انڈرسٹینڈنگ نہ کرنے دیں، کسی کو لڑائی جھگڑا نہ کرنے دیں. آپس میں مل کر اپنے فیصلے کریں، آپس میں مل کر رہیں. تو پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت. میں نے بتایا کہ یہ جو ابھی میں نے پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 11 سے لے کے 12 آیت پڑھی ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ پالوس رسول نے پاک روح کی ہدایت سے یہ میاں بیوی کے تعلق سے لکھا ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے، کیونکہ عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے اور مرد عورت کے بغیر، یعنی دونوں مل کر رہیں. اور خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے آئیے سنتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت. یہاں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. ٹھیک ہے جی، کیا کہا؟ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا. یعنی معاون، مددگار، ایک دوسرے کے سانجے، دکھ سکھ میں اکٹھے، ہر حال میں، غمی میں، خوشی میں، غربت میں، پریشانی میں، خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی اکیلا مرد نہیں. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ اگرچہ میں بن بیاہ ہوں، یعنی میں نے شادی نہیں کی، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ شادی نہ کرو. اگر شادی کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے، بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے تو رہ لے، جیسے میں ہوں. یعنی پالوس نے شادی نہیں کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں شادی نہیں کی تو مست ہوتے رہے. تو مست ہوتے ہیں، یعنی شادی نہیں کی، میں کمانا اور ادھر ادھر کی یعنی خرابیاں کرنی، تو اس سے بہتر ہے کہ بیاہ کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ شادی کر لیں. ہاللیلویا. کیونکہ کلام میں پہلے ہم نے پالوس رسول کے بارے میں دیکھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اس لیے اپنے رشتوں کو استوار کریں، اپنے رشتوں کو ہر روز تعمیر کریں، اپنے رشتوں کو ہر روز ٹائم دیں. یہ نہیں ہے کہ اگر خامد تھکا ہے یا بیوی تھکی ہے تو ٹائم نہیں. ایک خاص ٹائم مقرر کریں جس میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں بات چیت کریں. ٹھیک ہے جی، ہاللیلویا. میں ابھی آپ کے سامنے
बाइबल में से चंद मसाली जोड़ों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमारे जो रहनुमाई करती है, जिसकी रोशनी में हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं, वो है बाइबल। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि जोड़े किस तरीके से खुदा उनके साथ चलते रहे। उनमें से चंद एक पे मैं नाम लूंगी, आदम और हवा। आदम और हवा, अब्राहम और सारा। आदम और हवा, अब्राहम और सारा, इसहाक और रिबका, याकूब और राकल, बोएज और रूत, मनोहा और उसकी बीवी, अल्काना और हन्ना, जकरिया और अलिशबा, यूसुफ और मरियम, और परसिकला अक्विला। परसिकला और अक्विला, ये बाइबल में फेमस मियाँ बीवी हैं जो खुदा की राह में चलते रहे, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते रहे, खुदा के हुक्मों को मानते रहे, खुदा की ताबियादारी करते रहे, खुदा की फरमाबरदारी करते रहे और खुदा के साथ चले। गो वो उनमें खामियां भी होंगी, मैं ये नहीं कहती कि वो खूबियों से भरे थे। इंसान है, कामिल तो कोई नहीं, कामिल तो सिर्फ एक ही है, खुदा यीशु मसीह। यानी इनमें खामियां भी थी लेकिन ज्यादा खूबियां थी। तो हमें क्या करना है, इनकी खूबियों से सीखना है कि किस तरीके से वो खुदा के साथ। देखिए, अगर किसी का बच्चा या किसी की बीवी या किसी का कामद गलत काम कर रहा तो हम उसकी गलतियों को तो नहीं अपनाते। मुझे सुने, मुझे देखे प्लीज। आर यू हियर? यस। तो मैं ये कह रही थी कि इनमें खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं, लेकिन हम इनकी खूबियों को देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा इंसान होने के नाते खामियां तो हो सकती हैं। तो मैंने चंद एक किरदार, कैरेक्टर आपको बताएं बाइबल में से कि वो कौन कौन से किरदार थे जो खुदा के साथ चलते हैं। लेकिन मैं इन सबको तो नहीं सुना सकती, बारी बारी सुना सकती। तो आज हम जिस जोड़े को देखेंगे कि किस तरीके से वो खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते रहे, किस तरीके से अपनी मैरिज लाइफ को जो है वो तामीर करते चले गए, किस तरीके से एक दूसरे के वफादार रहे, किस तरीके से एक दूसरे से प्यार करते रहे, फरमाबरदारी करते रहे, मोहब्बत करते रहे और अपने सारे मंसूबों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहे। तो उनमें जो आज मैं जोड़ा सुनाऊंगी वो है अल्काना और हन्ना। बोले जी, कौन सा जोड़ा मैंने कहा है? अल्काना और हन्ना। तो इसके लिए मैं मुख्तसर अपने अल्फाज में तेजी के साथ स्टोरी सुनाऊंगी। कलाम में लिखा है कि इफ्राहिम के मुल्क में एक शख्स रहता था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राहिमी था और उसकी दो बीवियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम फिनना। समझ आ रही मेरी बात? तो वो हर साल कुर्बानी करने के लिए, रब्बुल फाज के हुजूर सजदा करने के लिए सिला में जाता था। और जब वो जाता था तो अपनी बीवी फिनना को और उसके बेटों को उनका बराबर का हिस्सा देता है। सुन रहे हैं आपको कहानी? सुन रहे हैं? हालेलुया। तो मैंने कहा कि उसकी दो बीवियां थी। तो जब वो साल ब साल कुर्बानी चढ़ाने के लिए, सजदा करने के लिए सिला में जाता था ताकि रब्बुल फाज के हुजूर अपनी कुर्बानियां अदा करे, तो कुर्बानियां चढ़ाने से पहले अपना हक अदा करता था। और वो ये करता था कि अपनी बीवी फनना को और उसके बेटों को जितना उनका हिस्सा होता था, कि उन्होंने किस तरीके से खुदा के हुजूर जाके कुर्बानी गुजरानी है, कैसे हदिया देना, कैसे उनका हिस्सा है कि कुर्बानी चढ़ानी है, वो देता था। और जो हन्ना थी वो उसको दुगना देता था। और कलाम में लिखा हन्ना को वो इसलिए दुगना देता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था और खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था। हाँ जी, खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था। लेकिन यहाँ मैं इसलिए नहीं कह रही कि उसे दुगना इसलिए देता था, शायद दुगना इसलिए देता था कि उसे इनकरेज करता था, उसकी हौसला अफजाई करता था और उसे ये कहता होगा कि डरने की जरूरत नहीं है। शायद वो ये कहता था कि ईमान से मैं तुझे दुगना दे रहा हूं ताकि जब तेरे बच्चे हो तो उनको पता हो कि हमारे बाप ने हमारे लिए ये अलग हिस्सा छोड़ रखा है। यानी कुछ भी आप कह सकते हैं, या यूं कह लें कि वो उसको इनकरेजमेंट करता था कि ये ना समझे कि अपने बेटियों को देता है, बीवी को देता है, तो मुझे नहीं देता। तो कलाम में लिखा है कि एक साल जब वो ऐसे ही कुर्बानी चढ़ाने के लिए गया अपने बीवी बच्चों के साथ, उसने कुर्बानी चढ़ाई। और वहां जब वो गए तो उन्होंने जब खाया पिया, तो हन्ना जो थी, क्योंकि मैंने पहले कहा उसके औलाद नहीं थी, हन्ना की औलाद नहीं थी, तो हन्ना जब खुदा के हुजूर गई तो ज़ारों
रोने लगी, खूब रोने लगी। तो उसका खामद उसे क्या कहता है, गौर से सुनिए, इसी में से सारी स्टोरी है। तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि हन्ना तू क्यों रोती है, क्यों नहीं खाती, तू क्यों अफसुर्दा है, तू क्यों आरज़ूदा है, तू क्यों मायूस है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? तू क्यों गमज़दा होती है? लेकिन चूंकि औलाद का गम था उसे, इसलिए वो रोती थी। तो ऐसा हुआ, कलाम में लिखा है कि जब वो खा पी चुके तो हन्ना उठी, और जब वो उठी तो हैकल की चौखट के ऊपर एली बैठा हुआ था, और वो जाकर खुदा की हजूरी में ज़ारो कुतार रोने लगी और खुदा के आगे गिरियाज़ारी करने लगी, अपने गम को, अपने दिल को हल्का करने लगी। तो एली ने समझा कि शायद, क्योंकि वो होंठों के साथ अंदर ही दिल में दुआ कर रही थी, तो एली ने समझा कि शायद इसने मैं पी रखी, इसने नशा पी रखा। तो एली ने उसे कहा कि अब तू अपने नशे को उतार दे और होश में आ। तो उसने कहा, ए मालिक मैं नशे में नहीं हूं। उसने क्या कहा, ए मालिक मैं नशे में नहीं, मैं तो अपने दिल को खुदा की हजूरी में उंडेर रही हूं, यानी अपने गम को खुदा की हजूरी में दे रही हूं। इसलिए याद रखें कि कभी मुश्किल आ जाए तो हमेशा खुदा की हजूरी में खड़े हो जाएं। तो वो एली से कहती है, काहिन से कहती है कि ना तो मैंने नशा पिया है, ना मैं पी हुई है, बल्कि मैंने खुदा के आगे अपना दिल उंडेला है, मैं मुसीबत की मारी हूँ, मैं गमज़दा हूँ। तो उसने बताया उसे स्टोरी शॉर्ट कि उसने कहा कि औलाद दिया, तो खुदा ने, एली ने कहा कि जा खुदा तेरे दिल की मराद को पूरा करे। तो यहाँ इतनी ही स्टोरी मैं सुनाऊंगी। तो कलाम में लिखा है कि वो बड़े ईमान के साथ शुक्रगुजारी करती हुई अपने घर चली गई, और मुकर्रा वक्त पर जब खुदा ने उसको बेटा दिया और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, जिसका नाम है मांगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। अभी हमने स्टोरी सुनी है, और अब इस स्टोरी को हम मुख्तसर तौर पे दोनों के किरदार को देखेंगे कि दोनों किस तरीके से चलते रहे। तो अल्काना और हन्ना का तारुफ मैं साथ साथ करवाती जाऊंगी। कभी मैं हन्ना के बारे में बताऊंगी, कभी अल्काना के बारे में। हाँ जी, क्या नाम है? हन्ना और अल्काना। बोले मेरे साथ, हन्ना और अल्काना। यानी हम हन्ना को भी देखेंगे और अल्काना को भी देखेंगे। तो मैं पहले बताती हूँ अल्काना के बारे में। मैंने बताया कि अल्काना इफ्राइम के मुल्क का रहने वाला था, लावी के घराने से था, लावी के घराने से था, दौलतमंद था, शोहरत याफ्ता था और खुदा से मोहब्बत करता था। और ये मोहब्बत का सबूत आप देख रहे हैं कि वो हर साल अपने रब्बुल फाज के हुजूर कुर्बानियां अदा करता था। यहाँ बाइबल में उसके बारे में ये नहीं लिखा कि वो हर रोज इबादत करता था, लेकिन जब हम किसी को पहचानते हैं कि ये रास्तबाज कैसा, तो उसकी गिरफ्तार से, रफ्तार से, किरदार से देखते हैं। यानी हम किसी शख्स को इस तरीके से पहचानते हैं कि उसका किरदार कैसा है। क्या वो खुदा के साथ चल रहा है, क्या वो हर रोज हैकल में जाता है, क्या वो दुआ करता है, क्या वो बाइबल पढ़ता है। तो हम इसी तरीके से देखते हैं ना। यानी हम ये थोड़ी देखते, हमारे पास गैर का इल्म तो नहीं है कि हम किसी के किरदार को परखें या कहें कि देखें कि ये खुदा के साथ कैसे चलता है। हम ऐसे ही देखते हैं कि उसकी दुआया जिंदगी कैसी है, उसका खुदा के साथ रिश्ता क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्काना जो है वो खुदा से मोहब्बत करता था, वो दौलतमंद था, लेकिन लावी के घराने से ताल्लुक रखता था। और लावी कौन थे? लावी वो थे जो खुदावंद के हुजूर सौतनियां कुर्बानियां अदा करते थे, यानी खुदावंद की खिदमत करते थे। तो इसलिए मेरी सोच है, तो ये कैसे खुदावंद से दूर हो सकता है? क्योंकि उसका ताल्लुक ही लावियों के घराने से है। क्योंकि जब लोग हैकल में कुर्बानियां लेकर आते हैं तो लावी वो हैं जो खुदा के हुजूर उनकी मुनाजात को, दुआओं को लेकर आगे जाते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ हन्ना और अल्काना दोनों के बारे में। मैंने पहले बताया कि हन्ना की सोच थी फिनना, यानी उस अल्काना की एक और बीवी भी थी, और बीवी क्या करती थी, उसको ताने देती थी, हर वक्त छेड़ती थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी कि हन्ना को तंग करे, हन्ना को तंग करे, हन्ना को अफसुर्दा करे।
लेकिन हन्ना जो थी वो बिल्कुल उसका जवाब नहीं देती, यानी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देती थी। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देती। ये हन्ना की जिंदगी के बारे में बता रही हूँ। औलाद नहीं है, सोच उसको ताने देती है, छेड़ती है, तंग करती है, मुश्किल हालात में से उसे गुजरना पड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं करती थी अच्छा तेरी ऐसी तैसी तू मेनू है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खुदावंद से प्यार करती थी। आपने पीछे कहानी में देखा है कि वो खुदावंद के हुजूर अपने दिल को उड़ेल रही है, अपना गम खुदावंद के आगे रख रही है, ना कि किसी और के आगे। तो इसलिए उसे पता था कि जिस खुदावंद की मैं परस्तिश करती हूँ, जिस खुदावंद को मैंने कबूल किया है, जिस खुदावंद को मैं जानती हूँ, क्योंकि पीछे वो सुन चुकी थी कि रब्बुल फाज गयूर खुदावंद है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो दुआओं का जवाब देता है और हमेशा अपने लोगों की मदद करता है, वो गिरों को उठा देता है, वो झुकों को गले लगाता है। इसलिए वो जानती थी कि मुझे सब्र करना है, मुझे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। ये नहीं कहना कि अगर सास ने एक बात की तो मैं 10 करके सुनाऊंगी, जेठानी ने एक बात की है तो मैं उसका जवाब उससे बढ़ कर दूंगी, हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो मैं उसका जवाब बढ़, बल्कि वो सब्र के साथ सुनती रहती थी और कुछ नहीं कहती थी। और यही वजह है कि आपने देखा स्टोरी में, हालेलुया हालेलुया, आई जोरदार तालियां उसके जवाब के लिए। आपने देखा कि उसका सब्र का रिजल्ट क्या था। सब्र का रिजल्ट ये था कि उसका हस्बैंड उसे बेहद प्यार करता था, उसका हस्बैंड उससे बेहद प्यार करता था, उसे दुगना देता। और मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि वो कहता था क्या हन्ना तू क्यों परेशान होती, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं। तो ये उसकी हौसला अफजाई थी। उसे पता था कि जब खुदा मुझसे प्यार करता है, नंबर 2 पे मेरा हस्बैंड प्यार करता है, तो दुनिया की उसे कोई परवाह नहीं। आप कभी आजमा के देखें कि अगर आप अपनी बेटी को या आप अपनी बीवी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो आप देखें कि आपकी बीवी जो है हमेशा आपकी ताबेदार रहेगी, खुदावंद की भी और आपकी भी, और खुदा के साथ भी चलेगी। आपके घर में हर वक्त शादमानी होगी। आप इन बातों को कभी आजमा के भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। यही वजह थी कि हन्ना को पता था कि मुझे क्या लगे, जो कहती रहे, मुझे मेरा हस्बैंड प्यार करता है और मेरा रब्बुल फाज मुझसे प्यार करता है। फिर एक वक्त आया, आपने देखा कहानी में ये सुना है कि हन्ना ने एक मन्नत मानी खुदा के हुजूर। आप सुन रहे हैं सब? यस। सुन रहे हैं? आवाज नहीं आई, जरा जोरदार सुन रहे हैं सब? तो कलाम में लिखा है कि जब सैमुएल ने एली ने उसे कहा कि जा तेरी खुदा मुराद पूरी करे, तो बड़े ईमान के साथ वो चली गई। उसके बाद ना इधर गई ना उधर गई, कहीं भी नहीं गई, बल्कि ईमान के साथ वो चली गई। और उसने वहां मन्नत ये मानी कि खुदा अगर तू मुझे औलाद देगा, औलादे नरी ना मुझे अता करेगा, तो मैं इसको तेरे लिए वक्फ कर दूंगी। अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको तुझे दे दूंगी। हालेलुया हालेलुया। तो उसने जो मन्नत मानी थी और उसको पूरा किया। अब प्यार देख ले हस्बैंड का। बीवी ने मन्नत मानी है, हस्बैंड ने मन्नत नहीं मानी। किसने मानी है? किसने मन्नत मानी? अब देखें, जब सैमुएल पैदा हुआ है तो अभी एक ही बच्चा पैदा हुआ है, यानी सैमुएल पैदा हुआ है। मन्नत हन्ना ने मानी है, और अगर खामद चाहता तो उसकी मुखालफत कर सकता था। अगर खामद चाहता तो उसकी मुखालफत कर सकता था। कहता भाई ये क्या बात हुई, एक ही बेटा आया, अभी एक ही बेटा हुआ, और वो भी इतने सालों बाद। मैं इस मन्नत को कबूल नहीं करता, मैं इस मन्नत को नहीं मानता, मैं इस मन्नत के खिलाफ हूं। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं ऐसा किया, क्योंकि मैं पहले बता चुकी, क्योंकि वो भी लावी के घराने से था। वो उसकी मन्नत को उसने ऑनर किया, और उसने जो मन्नत मानी थी उसको उसने कबूल किया। उसने कहा ठीक है, जो तूने मन्नत मानी है। अगर कलाम में लिखा है, गिनती की किताब उसके 30 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि लेकिन अगर उसका आदमी सुने ध्यान से मन्नत का असूल। मियां बीवी जब मन्नत मानते हैं, पहली बात, अगर बीवी मन्नत माने और खामद को कबूल ना हो तो वो मन्नत टूट जाती है। सुन रहे हैं आप? हाँ ना का जवाब नहीं। yes. सुन रहे हैं? अगर बीवी मन्नत माने और खामद खिलाफ हो तो वो मन्नत टूट जाती
जाती है, छूट जाती है और कोई गुनाह नहीं होता खुदा की नजर में, वो मन्नत खत्म। या खामद मन्नत माने और बीवी जो है वो कहे कि मुझे ये मन्नत कबूल नहीं है, तो वो मन्नत छूट जाती है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसके लिए मैं आपकी क्या कहना चाहिए, मालूमात के लिए हवाला पढ़ना चाहती हूँ गिनती की किताब, उसका 30वां बाब और उसकी 8 आयत। यहाँ लिखा है लेकिन अगर उसका आदमी जिस दिन ये सब सुने, यानी बीवी जब बताए कि ये मैंने मन्नत मानी है, तो उसका आदमी ये सब सुने और उस दिन उसे मना करे, सुन रहे हैं आप? उस दिन उसे मना करे, तो उसने गोया उस औरत की मन्नत को, उसके मुंह से निकली हुई बात को जो उसने अपने ऊपर ठहराई थी, तोड़ दिया और खुदा उस औरत को मासूम रखेगा। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर औरत ने मन्नत मान लिया और हस्बैंड को पसंद नहीं आया, तो औरत को कोई खुदा गुनाह नहीं देगा, यानी वो उससे आजाद हो जाएगी। लेकिन होता यह था कि मोस्टली जो मन्नत मानी जाती थी वो उसको पूरा करते थे। वो कहते थे कि हमने खुदा को जबान दे रखी है। आपने फेमस स्टोरी सुनी होगी इफ्ता जलादी की, फेमस स्टोरी इफ्ता जलादी। इफ्ता जलादी ने भी एक ऐसी ही मन्नत मानी थी और उसने कहा था कि जब मैं फतह पाकर आऊंगा तो मेरे सामने जो भी पहले आएगा मैं उसको खुदा की नजर कर दूंगा, मैं उसको खुदा की नजर कर दूंगा। ये किसने मन्नत मानी? इफ्ता जलादी ने। ऐसा हुआ कि जब वो जंग करके आया, तो जंग करने के बाद वापस आया, क्योंकि जब बादशाह जंग करके वापस आते थे तो लड़कियां, नौजवान लड़के दफियां और ढोलक बजाते, नाचते, उछलते, फतह का जो जश्न था वो उसे मनाते थे। और बताती चलूं कि इफ्ता जलादी की सिर्फ एक ही औलाद थी, एक ही बेटी थी। ऐसा हुआ कि जब वो आया, अपने फाटक पर आया, तो सबसे पहले इस्तकबाल उसकी इकलौती औलाद, अकेली बेटी ने उसका इस्तकबाल किया। जब उसने इस्तकबाल किया तो उसने कहा कि हाय बेटी, तूने ये क्या किया? मैंने तो खुदा को जुबान दे रखी है, मैंने तो मन्नत मानी है। तो बेटी ने कहा कि बाप, जो तूने मन्नत मानी उसे कर गुजर। तो वो मन्नत पूरी की गई। लेकिन मैंने पहले बताया कि अगर आप डिसएग्रीमेंट है, आप नहीं आपस में इत्तेफाक कर रहे, तो आप उससे छूट सकते हैं। तो मैंने कहा कि अल्काना ने, यानी हन्ना के खामद ने उसकी कोई मुखालफत नहीं की। उसने कोई नहीं कहा कि ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, अभी एक ही बेटा यानी सैमुएल बड़ी मन्नतों के साथ, बड़ी इल्तिजाओं के साथ मिला है, ये तो मेरे बुढ़ापे का, ये तो बड़ा होकर मेरी जगह संभालेगा, ये तूने क्या किया? बल्कि उसने उसको ऑनर किया और उसके साथ खड़ा रहा और उसने कोई रुकावट नहीं डाली। आगे हम देखते हैं कि अल्काना की जिंदगी से हम क्या सबक सीखते हैं। अल्काना, हन्ना का हस्बैंड, अल्काना से हम ये सीखते हैं कि वो खुदा से प्यार करता था, यानी तहवारी और अतवारी नहीं था। तहवारी और अतवारी नहीं था, यानी ईस्टर के ईस्टर, क्रिसमस के क्रिसमस ऐसी नहीं था, बल्कि जो हम देखते हैं उसकी जिंदगी में से वो हर रोज दुआ करने वाला था, खुदा से डरने वाला था, खुदा की इबादत करने वाला था, खुदा के चरणों में बैठने वाला था। मैं पहले बता चुकी हूँ कि लावी के घराने साथ सारे असूल पता थे। तो इस तरीके से उसकी जिंदगी जो है उसके किरदार से हमें नजर आ रही है। तो अगर हम देखें नए ऐहदनामे में, तो कलाम में लिखा है कि हमारा मसीहा, हमारा मुअल्लम, हमारा खुदा हर रोज खुदावंद की हजूरी में हैकल में दुआ करने जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम सीखते हैं कि मैंने बताया कि अल्काना जो था वो हन्ना को दुगना हिस्सा देता था। हन्ना को दुगना हिस्सा। देखिए, मैं बार बार स्टोरी रिपीट कर रही हूं ताकि सारी उम्र आपको ये स्टोरी याद रहे और आप अपनी नस्लों तक मुंतकिल कर सकें, इसलिए ध्यान से सुने। तो मैंने कहा कि वह हन्ना को दुगना हिस्सा देता था क्योंकि उससे प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था। मैं ये नहीं कहती कि दूसरी से नहीं करता था, लेकिन कुछ अहमियत होती किसी बंदे की, वो उससे ज्यादा प्यार करता था। अगर आप देखें याकूब के बारे में, तो याकूब के बारे में लिखा है कि वो राकल से, लिया से ज्यादा प्यार करता था। राकल से याकूब ज्यादा प्यार करता था। जबकि ऐसा होना चाहिए कि खानदान
एक जैसा होना चाहिए, जिसे कहना चाहिए तरफदारी नहीं होनी चाहिए। अक्सर फैमिलीज में होता है कि मैंने पहले कहा कि हम खामियां भी देख रहे हैं और खूबियां भी। यहाँ हमें थोड़ी सी नेगेटिव बात नजर आती है कि वो इसको दुगना दे रहा है, तरफदारी कर रहा है, लेकिन वो अपने दूसरे बच्चों को भी तो उनका बराबर हिस्सा दे रहा है, अपने दूसरे बच्चों को भी उनका बराबर हिस्सा दे रहा है। वो गुनाह नहीं कर रहा, तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उससे उसको ज्यादा प्यारा हो सकता है, उसकी ज्यादा खिदमत करती है। मेरे साथ निकालिए पहला सैमुएल, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत। यहां लिखा है, सो उसके खामद अल्काना ने उससे कहा कि ए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती? तेरा दिल क्यों अरसूगा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? यहां मैं एक खास पॉइंट देना चाहती हूं कि अगर बीवी कभी थक हार जाए काम कर करके, तो ये नहीं कि आपस में लड़ाई हो, बल्कि इनकरेज करे, हौसला अफजाई करे, उसे कहे कि हाँ, उसकी हिम्मत बताए कि हाँ आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप बहुत मैं आपसे प्यार करता हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि कभी कभी हो सके तो जब वर्क से आए, ड्यूटी से आए, छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आए, कुछ और नहीं तो ऑरेंजेस ही ले आए। इससे ये होता है कि एक दूसरे का प्यार बढ़ता है। और गाहे बुगाहे कोई ना कोई छोटी चीज, कभी फूल ले आए, कोई पुड़ियों में नहीं बिकते, कोई इतने हीरे जवाहरात के नहीं है। अपनी बीवियों को इनकरेज करने के लिए, या बीवियां हस्बैंड के लिए स्पेशल डिश बनाया करें कि मैं आज आपके लिए खास खाना बना रही। तो इससे क्या होता है, हम ये क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि तो ये बाइबल में से किरदार बताए जा रहे हैं ताकि मियाँ बीवी का जो प्यार है वो बढ़ता चला जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इब्लीस की ये चालाकी है कि सबसे पहले वो फैमिलीज को अटैक करता है, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को अटैक करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं? तो देखें, शैतान तो फिर रहा है धंधनाता हुआ, लेकिन फतह तो हमारे यीशु की है। तो मैं कह रही थी कि उसकी कोशिश होती है कि मियाँ बीवी के रिश्ते को अटैक करें, इसलिए कभी बीच में रखना ना रखें, कभी गैप दे ही ना, कभी इब्लीस को मौका ही ना दे। हमेशा दोनों मियाँ बीवी मिलकर दुआ करें, एक दूसरे की ढारस बनाए। जैसे ये अल्काना अपनी बीवी को कहता है, क्यों रोती है, क्यों अफसरदा होती है? मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरी केयर करूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे दुख सुख का साथी हूँ। अगर आपको याद हो, जितने मैरिड जोड़े यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने खुदावन की हजूरी में एक दूसरे के साथ अहद किया था कि मैं तेरे दुख और सुख में तेरे साथ होऊंगा, है कि नहीं? yes. बोले जी, yes. है कि नहीं? yes. तो जब है तो कई दफा मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ शर्माते हैं। भाई शर्माना किस बात का, क्यों शर्माते हैं? अलानिया कहा करें कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप कहेंगे कि मैडम पता नहीं क्या सुनाने बैठे, क्यों एल्बर्ट भाई क्या? हाँ कहे आई लव यू। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद सुने, एक मशरकी बात बताने लगी। जब शादी होती है, कंवारी लड़की को माँ बाप जवान भाई एक मर्द के हाथ में दे देते हैं, और वो है उसका हस्बैंड। जब मजमे में बीवी को उसके हस्बैंड को दे दिया जाता है, दूसरे नए घर में आ जाती है, तो फिर क्या होना चाहिए? खामिद को उसकी केयर करनी चाहिए, बीवी को उसकी केयर करनी, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। इसमें कोई बुराई नहीं जी, कह दिया आई लव यू, या उसके लिए स्पेशल चीज लेकर आए, बच्चों से भी कहें, क्योंकि बच्चे के देखेंगे तो नमूना हासिल करेंगे। अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे, अगर आप हर वक्त एक दूसरे के साथ तू मैं माँ, तेरी बहन, या तेरे मेके वाले मेरे मेके वाले को, उसके मेके वाले को नीच करे, या आप अपने मेके वालों को ऊपर करें, तो लड़ाइयां तो पैदा होंगी। लड़ाइयां होंगी या नहीं? या इसमें मेरी माँ के भाई को कह दिया, कह के जाने वाला कहाँ? तो ये है खराबियां, ये है इब्लीस मौके ढूंढता। इसलिए इब्लीस को मौका नहीं। अगर खामद ने चलो गुस्से से मुंह से निकल ही पड़ा है, तो माफ करना सीखे, माफ करना सीखे। अगर बीवी ने गुस्से से कुछ कह दिया है, तो माफ करना शुरू करें, ताकि दोनों मियाँ बीवी मिलकर खुदा के नाम को जला दे, खुदा के साथ चले। और यही किरदार जो है वो आपके बच्चे देखेंगे, और बच्चों की लाइफ जो है, बच्चों का जो कैरेक्टर है वो बिल्ड होगा। अगर आप नहीं ख्याल करेंगे, अगर आप तू मैं अपने बच्चों के सामने करेंगे, लड़ाई करेंगे, बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे, बच्चे मायूस हो जाएंगे, बच्चे इधर उधर पनाह ढूंढेंगे, बच्चे गलत काम करेंगे।
क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए आज से अगर रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तौबा करें कि वो कलियां, वो नखेस फूल, वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे पौधे हैं, हमने उनको परवान चढ़ाना है। मियाँ बीवी अपनी जबान को जो है वो शुस्ता करें, अपनी जबान को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि जो बच्चे, जो औलाद खुदा ने दी है, कलाम में लिखा है कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर मेवादार दरख्त की मानिंद हो। तो कैसे होगी? जब हम उनको परवान चढ़ाएंगे। कैसे? कलाम से। हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। अब हन्ना के बारे में सुनिए। हन्ना के बारे में लिखा है कि उसका खुदा पर पुख्ता ईमान था। उसका खुदा पर पुख्ता ईमान था। सुने ध्यान से। अब हन्ना की औलाद नहीं है। अब वो ये नहीं करे इधर चली जा रही है, इधर चली जा रही है कि ही से दुआ करे। सिर्फ और सिर्फ खुदाम की हजूरी में रह गया, सिर्फ और सिर्फ खुदाम के साथ रह गया। यहाँ तक कि जब जितने मर्जी उसे ताने मिले, उसने खुदाम को नहीं छोड़ा। जितना मर्जी उसकी सोच उसे बुरा बुरा कहती थी, जितनी मर्जी उसको तंग किया, लेकिन उसने खुदाम पे भरोसा रखा, खुदाम पे पक्का ईमान रखा। और कलाम में लिखा है ज़बूर 126 और उसकी 5 आयत लिखा है कि जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। मेरे साथ बोले, जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। फिर एक दफा, जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी के साथ। अगर आज गुर्बत है तो क्या हुआ? अगर आज परेशानी है तो क्या हुआ? अगर आज थोड़ा सा खामद ने पैसा नहीं दिया, अब ये ना कहना मैं किसी को लगा रही हूं। अगर खामद ने थोड़ी देर के लिए नौकरी छूट गई है या पैसे नहीं दिए तो क्या क़यामत आ गई, क्या आग लग गई है, क्या जंग छिड़ गई है, या बीवी ने कुछ कह दिया, ख्वाहिश कर दी है तो पैसे कम है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करें, मिलकर चलें। बीवी की ख्वाहिशात को देखें। वो एक मर्द को अपनाने के लिए अपना सारा कुंबा छोड़कर आती है, अपने बहन भाई छोड़ के आती है, अपने वालिदैन रिश्ते नाते सब छोड़ के आ जाती है। किसकी खातिर? एक हस्बैंड की खातिर। अब मैं ये नहीं कि मैं बीवी, तो मैं कह रही बीवियों के बारे, लेकिन बीवियों को इनकरेज करें, बगैर तनख्वाह के काम करती हैं। हस्बैंड का भी, बच्चों का भी, नस्लों का भी ताजा ताजा खाना हर तरीके से वो सर्व करती हैं। इसलिए ये नहीं कि आप वर्क से आए हैं, आप ऑफिस वर्क करके आए तो आके साथ ही बुकल मारी मंदी से लेट गया, मैं थका है, थोड़ा टाइम खानदान को दें, या नींद पूरी करने के बाद एक वक्त मुकर्रर करें जिसमें उनसे कहेंगे आए अब हम मिलकर कभी पार्क चले जाएं, कभी बच्चों को खेलों की जगह पर ले जाएं, या घर में टाइम स्पेंड करें। इस तरीके से शैतान आप पर कभी हमला नहीं कर पाएगा। मिलकर दुआ करें, मिलकर एक दूसरे के साथ कलाम पढ़ें। और इस तरीके से मैंने बताया कि हन्ना किस तरीके से स्ट्रॉन्ग थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और हवाला, इफिसियों 5 बाब और उसकी 33 आयत। इफिसियों 5 बाब और उसकी 33 आयत। यहां लिखा है कि बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। ठीक है जी। मैंने पहले कहा था कि मैं अल्काना और हन्ना को दोनों को साथ ले लेके चलूंगी, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के बारे में सुनेंगे। यहां हमने ये पढ़ा है कि बीवी क्या करे जी? मोहब्बत करे और खामद से डरती रहे। अब यहां डरने का मतलब ये नहीं कि हाय 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 पता नहीं क्या हो गया, वो मेरी टांग तोड़ देगा, पता नहीं क्या हो गया, मुझे मार देगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। यहां डरने से मतलब है कि उसके रोब और दबदबे को माने, उसे ऑनर करे, उसे पता होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को क्या चीज पसंद नहीं है। अब हस्बैंड को अगर कोई चीज पसंद नहीं है, मिसाल के तौर पे जब मेरी नई नई शादी हुई, मैं आपको बताती हूँ, मेरी नई नई शादी हुई तो मेरे भाइयों ने नथ के बाद मुझे कोका भी दिया और उन्होंने कहा कि ये कोका पहना है। ठीक है, तो जब मैं कोका पहना तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं था कि मैं कोका पहनूं, तो उन्होंने कहा कि एग्नेस मुझे कोका आपका पसंद नहीं है। मैंने उसी दिन उतार दिया। मैंने कहा जो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, ठीक है, वालिदैन ने दिया, सोने का दिया है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जिसके साथ रहना मैं उसको डिसऑनर कर दूं। तो मैंने उस वक्त से लेकर आज तक कोका नहीं पहना। तो जब आप अपने हस्बैंड की
अपनी पसंद या नापसंद का ख्याल रखेंगे, या खामद अपनी बीवी और बीवी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखेगा, तो कभी भी इब्लीस आपको छूने नहीं पाएगा। ये याद रखे बीवियों, और ये याद रखे शोहरों, मिलकर एक दूसरे से प्यार करना है। डरने का मतलब ये नहीं है कि जिसे कहते हैं पंजाबी में लहदा गोजी रख लो, हाय हाय खामद को पता ना चले, तेरे अब्बे ना पता चले मेरे को लहदा भी पैसे है। ये कैसी जिंदगी है? यही वजह कि इब्लीस अटैक करता है। आपके पास 1000 है, अपने हस्बैंड को बताएं कि मेरे पास 1000 रुपया है। आपके पास 200 रुपया है, बताएं हस्बैंड, और खामद भी बताएं जी हाँ मुझे फलां का फोन आया था, उसे डिलीट ना करें, डिस्कनेक्ट ना करें फोन को, बात छत पे सुनने ना जाएं, अपनी बीवी के सामने सब कुछ करें। जब आप दोनों एक दूसरे के सामने अय्यां होंगे, एक दूसरे को अपना जाहिर करेंगे, कभी नाकामी, बदहाली, गुर्बत, बीमारी, कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर आ भी जाएगी तो खुदा अपने लोगों को संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बात, अगर हस्बैंड रास्तबाज नहीं है, अगर हस्बैंड रास्तबाज नहीं और बीवी रास्तबाज है, तो वो अपने किरदार से अपने हस्बैंड को जीत सकती है। मेरे साथ निकालने पहला कुरिन्थियों 7 बाब और 16 वर्स। क्योंकि औरत तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, और ए मर्द तुझको क्या खबर कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। ठीक है जी, जरूरी नहीं कि दोनों मियां बीवी रास्तबाज हो। मैं रास्तबाज नहीं थी, सुन रहे हैं, मेरा ताल्लुक कैथोलिक घराने से था, जहां मुझे खुदा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। खुदा को मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती थी कि इस्लामी मरियम पढ़ना है, रोजरी पढ़नी है, सुबह सवेरे हमारा बाप घुटनों के बाद कहके चलो 10 दफा रोजरी पढ़ो, 7 दफा, यानी मेरी लाइफ जो रिश्ता बाप के साथ होता वो रिश्ता नहीं था। मैं खुदा को नहीं जानती थी, मैं खुदा के बारे में नहीं जानती थी, मैं रेगुलर बाइबल पढ़ने वाली नहीं थी, मुझे कुछ इल्म नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा है, खुदा के बारे में क्या लिखा है। मैं तो जानती थी कि पतरस की ईद है, मुकद्दसा मरियम की ईद है, यानी ईदों को, त्योहारों को मानने वाली थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो खुदा ने मुझे बरकत दी। मैं कहती हूँ कि मेरी जिंदगी में पाक के बाद, खुदा के बाद जो सबसे बड़ा किरदार है वो मेरे हस्बैंड है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि रास्तबाज हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को अपने किरदार से बचा लेता है। और मैं जिसे कहते हैं ना, आहिस्ता 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 अपने हस्बैंड की लाइफ को देखती रही कि वो किस तरीके से चलते हैं, कैसे कलाम पढ़ते हैं, कैसे चलते हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसी दावत में बुलाया गया जहां कुर्बानी का गोश्त पकाया हुआ था, और उन्हें पता था मैं कैथोलिक घराने से, उन्होंने मेरे आगे हर तरह के खाने रख दिए, और रियाज साहब के लिए एक दाल और एक सब्जी रखी। और जब रखी गई तो मुझे कहने लगे कुड़िया तू तो खानी है ना। और ये वो लम्हा था जब मुझे दावत दी गई कि कुर्बानी का गोश्त खा, तो यकीन जाने पाक रूह ने चारों तरफ से घेर लिया मुझ कमजोर को, मुझ नकम्मी को, जिसका रिश्ता कोई खुदा से नहीं था। पाक रूह ने चारों तरफ से घेर लिया, मुझे ज़बान दे दी और कहा, और मैंने दिलेरी से कहा, जबकि मैं इतना शर्माती थी, मैं किसी के सामने नहीं बोलती थी, लेकिन पाक रूह चारों तरफ से आ गया और उसने मुझे घेर लिया, और मैंने दिलेरी से कहा नहीं, मैं वही खाऊंगी जो मेरे हस्बैंड खाएंगे, मैं वही पीऊंगी जो मेरे हस्बैंड पिएंगे। और कलाम में यही लिखा है कि अगर हम रास्तबाज है तो बीवी को अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन होता क्या है, कभी कभी लोग ये सीखते ही नहीं, कभी इस पे टाइम ही नहीं देते कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। क्या अगर मेरी बीवी रास्तबाज नहीं है तो मुझे इसको सेंचना चाहिए, मुझे इसको संवारना चाहिए। वो कई दफा अपने कामों में लगे रहते हैं और बीवी जैसी थी वैसी की वैसी रहती है। या यूं कहने के खामद, एक दफा ऐसा हुआ, हम किसी खानदान के साथ विजिट करने गए किसी के पास, तो हमने कहा भाई बहन तो चर्च आती, आप क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा जो इन्हें चर्च आके पा लिया मैं नहीं पाता, इनसे तब्दीली तो कोई भी नहीं आई, ऊंची गाला, ऊंची लड़ाई, ऊंची मुकाबलाबाजी। तो ये क्या बात हुई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कलाम में क्या लिखा भी हमने पढ़ा कि अगर हस्बैंड रास्तबाज है तो वो अपनी बीवी को अपनी रास्तबाजी से, जो कुछ उसने सीखा है कि हमें कैसे तौबा करनी है, बपतिस्मा लें, तो उसे बचा सकता है।
हालेलुया। तो इसका जरूर ख्याल करें। इसलिए हमने ये कलाम जो सुन रहे हैं उसमें ये लिखा है कि हस्बैंड अपनी बीवी को बचा सकता है। अगर मैं ये कहूं कि अगर दुनियादार लोग सुने, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के। अभी मैं आपको एक दुनिया की मिसाल देती हूँ, दुनिया में से एक शख्स की हिस्टोरिकल प्लेस, अजूबा, 7वां अजूबा, और वो है शाहजहान का मकबरा। शाहजहान ने अपनी बीवी को, अपनी बीवी की मोहब्बत में ताजमहल आगरा में बनवा के दिया। 30 साल उसे बिल्ड करने में, तामीर करने में लगे। सिर्फ मोहब्बत थी। 30 साल उसने आगरा में, इंडिया में ताजमहल बनाने के लिए, और 17 एकड़ में, यानी 17 एकड़ में उसने इतना आलीशान ताजमहल बनाया। किस लिए? अपनी बीवी को इनकरेज करने के लिए, अपनी बीवी को सराहने के लिए, अपनी बीवी की तारीफ करने के लिए, अपनी बीवी को हौसलामंद करने के लिए। अगर दुनिया के बादशाह ऐसे कर सकते हैं तो हम जो यीशु के खून से खरीदे, हम अपनी फैमिली को संवार नहीं सकते? बीवी खामद बीवी को संवार नहीं सकता। एक और मिसाल देना चाहती हूँ, ये इस्राएल के बादशाह की सुने। इस्राएल का बादशाह अखिया, उसके बारे में लिखा ये है पहला सलातीन उसका 21वां बाब। ये अखियब के बारे में यूं लिखा है कि अखियब खेती बाड़ी को पसंद, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हाथ उठाए मेरे सामने। इस्राएल के बादशाह अखियब के बारे में लिखा है कि उसे खेती बाड़ी का शौक था, काश्तकारी का शौक था, और उसका शौक था कि बड़े बड़े पाकिस्तान जो है वो खरीदता जाए, लगाता जाए, और अपनी मर्जी से वो जो भी काश्तकारियां करना चाहता करे। एक खेत उसे पसंद आ गया, और वो खेत यानी पाकिस्तान वो उसका नहीं था। वो पाकिस्तान उसका नहीं था, बल्कि उसके पाकिस्तान के साथ वो पाकिस्तान लगता था। किसका? अखियब बादशाह का, इस्राएल के बादशाह का। अब अखियब बादशाह था, और जो खेत था वो नबूत का था, यानी पाकिस्तान किसी आदमी नबूत का था। तो उसने अपनी उस आदमी से कहा कि ये पाकिस्तान मुझे दे दे, मेरे पाकिस्तान के साथ लगता है। लेकिन उस आदमी ने कहा मैं तुझे पाकिस्तान नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे बाप-जादाद की तरफ से, मेरे बाप दादा की तरफ से, इसलिए मैं पाकिस्तान तुझे नहीं दूंगा। बादशाह ने क्या किया? बादशाह जाके बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन गया, ना खाया ना पिया, बीवी के सामने जाके बैठ गया अफसुर्दा, गमगीन। तो बीवी ने, एजबल ने कहा तुझे क्या हुआ है? उसने कहा कि मेरे पाकिस्तान के साथ एक आदमी का पाकिस्तान लगता है, और मैंने उसे कहा कि ये पाकिस्तान मुझे दे दे, लेकिन वो देता ही नहीं। बीवी ने कहा दिया ऐसी तैसी, मेरे बंदे की ख्वाहिश नहीं पूरी है, मेरे बंदे की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान उससे मिले, तो वो पाकिस्तान नहीं देता। उसने कहा अच्छा तू उदास ना हो, खा पी नहा दो, ऐश करना, वो पाकिस्तान तेरे पास होगा। उसने क्या किया? लोगों को भेजा और उस आदमी को पकड़ा, और उस पर यह कह दिया कि ये शरीयत के खिलाफ बोलता है, बादशाह के खिलाफ बोलता है। यानी किस लिए उसने ऐसा किया? और उसे मरवा के उसका पाकिस्तान अपनी इकामत को दे दिया। बेशक ये नेगेटिव मिसाल है, लेकिन क्या है कि बीवी ने अपने कामल की मोहब्बत में वो पाकिस्तान जो है उससे ले लिया। अब दाऊद बादशाह के बारे में भी एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि मोहब्बत क्या होती है। पहली सी मोहब्बत, ठीक है। दाऊद बादशाह के बारे में लिखा है कि वो मीकल को चाहता था और मीकल उसे चाहती थी। और एक वक्त ऐसा हुआ कि जब साउल ने उस पर जुल्म और सितम उठाना शुरू कर दिए, तो वो मुश्किलात का दाऊद को सामना करना पड़ा, और वो भाग गया, दूर दराज भाग गया। और जब साउल मर गया और दाऊद के पास तख्त आ गया, यानी सल्तनत उसके पास आ गई, तो उसने सबसे पहले कहा कि बादशाह बनने के बाद उसने कहा जिससे मैं प्यार करता हूँ, या जिसे वो जो मुझसे प्यार करती उसको लेकर आ, जिसे मैंने 100 खलड़ियों के इवज खरीदा था। तो उसकी बीवी मीकल को उसके पास लेकर आया गया। अगर लोग यानी बादशाह, दुनिया के बादशाह और इस्राएल के बादशाह, यहूदा के बादशाह अपनी बीवियों को इस तरीके से प्यार करते हैं और अपनी मानद प्यार करते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। मेरे साथ देखें इफिसियों 5 बाब और उसकी 28वीं आयत। इफिसियों 5 बाब और उसकी, घबराए नहीं, लास्ट इफिसियों 5 बाब और उसकी 28वीं आयत। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की माने मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से
मोहब्बत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी हुक्म क्या है कि आप शोहरों को, कि अपनी बीवियों को अपने बदन के मुताबिक प्यार करें। स्टोरीज इस तरीके से आप सब जानते हैं इसके बारे में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम इसके बैक पे चले जाएं तो आप जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है पैदाइश में कि खुदा ने आदम और हवा को तख्लीक किया और उनके साथ वो ठंडे वक्त में रफाकत रखता था, टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ रहता था, उनके साथ रफाकत रखता था। और एक वक्त आ गया कि वो शैतान के बहकावे में आ गया और रिश्ता टूट गया खुदा और इंसान का। लेकिन खुदा फिर भी प्यार करता है। ये है मोहब्बत। कलाम में क्या लिखा है? खुदा मोहब्बत है। खुदा बोले, खुदा ऊंची बोले, खुदा, खुदा। और मोहब्बत की खूबी उसने हम पर यूं जाहिर की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और बेटा आ गया और वो रिश्ता जो टूट चुका था बाप से मिला दिया। हालेलुया। आखिरी पॉइंट ये देना चाह रही हूं कि इसी तरीके से जैसे मियां बीवी का रिश्ता है, ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता है। ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम क्या हैं? उसकी दुल्हन। बोले, खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। यूहन्ना की इंजील में 17 चैप्टर में लिखा है कि जब यीशु मसीह जाने वाले थे, मसलूबियत की तरफ कदम उठा रहे थे, जा रहे थे, तो अपने बाप से ये दुआ की, यानी यीशु मसीह दुआ कर रहा है कि ऐ बाप, जो तूने मुझे काम दिया था, जो तूने मुझे हुक्म दिया था, मैंने उसे तकमील तक ले आया हूं, मैंने उसे पूरा कर दिया है, मैंने उसे मुकम्मल कर दिया। लेकिन ऐ बाप, ये जो मेरे मानने वाले लोग हैं, सुने, जो आप मानने वाले लोग हैं। यीशु मसीह ने क्या दुआ की अपने शागिर्दों के लिए कि ऐ बाप, जो मेरे मानने वाले लोग हैं, मैं इनको छोड़